Humbleness, humbleness, humbleness. Yes, humbleness play an important role to hold all the blessing permanently in the life. Humbleness play an important role to hold all the blessing permanently in the life. So be humble, and I heartiest humble in front of the Creator and in front of you for your valuable time that you always shower on my happy universe. Thank you very much. And once again, I love to say, I love to repeat for you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessing. Thank you, God, for my happy universe family who always love their channel of blessings, who always supporting us with the blessings, always shower their lovable, blissful comments on my happiness. Thank you very much. God bless you more and more and moreover. Heartiest thank you to your subscriptions. I heartily thank you to your beautiful hands who has just subscribed their and mine happiness. So be blessed and more ahead. You are just be tuned for all the amazing videos with my happy universe. We have lots of creative videos for you. So be tuned and let's start the video. So I think once again I want to make myself introduce with you. Hello, I'm Shalini. I am a teacher, always here to make you very special, very blissful in your own channel of blessings, grace and happiness. So friends, let's start. I always used to say, love to say from the end of my life, and I don't know when it will be end. We are just continuing with YouTube with you, and moreover I will say you thank you, thank you, thank you. And see, we are continuing with the humbleness because I just shown very some transformative example with you through my one photo. So let's continue now. Humbleness, how humbleness play an important role to hold all the blessing. When we hold humbleness in our behavior, in our nature, from the spirit, from the mind, not from the brain, then how we can get that super blessings in the life. Because S stands here, what it does reflect here, you can see my beautiful creation for you, and this I have already shown you, I think in the qualities of teacher on the occasion of Teachers Day. I just discussed it with you. So just remember this word, because innovative means new. When we just humble in front of the heart, we are just showing something new. We are showing universe to bring something new in our life. मतलब कि जब भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ब्रह्मांड को संकेत दे देते हैं। हम हम्बल होने के लिए, हम्बलनेस के साथ जब धन्यवाद करते हैं तो भाई हम उनको ये भी साइन देते हैं कि यूनिवर्स, हम जो कुछ भी आप हमें देने जा रहे हैं हम उसे संभालने लायक हैं, और लायक की तो हमें बनना है, क्योंकि वो वाले नालायक हमें नहीं बनना जो ब्लेसिंग्स तो लेते हैं लेकिन ब्लेसिंग्स उनसे कब छिन जाती हैं, हमारे ईगोइस्टिक बिहेवियर के कारण। कहीं ना कहीं हम सबको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो हम सब सुधरने में, आगे बढ़ने में और हम्बलनेस और दीनता में एक दूसरे के साथ साथ है। और हम फिर से आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं जो कुछ भी आपने प्यार हमें दिया। थैंक यू वेरी मच दिल से आपका। आप जितना भी टाइम हमें देते हैं, भगवान उससे भी ज़्यादा 100 गुना खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में दे और आप बहुत खुश रहें। खुश रहना ही हमारा मकसद है। कहते हैं ना, ये फूल चढ़ाने से भगवान खुश हो जाता है। अरे भगवान तो फूल चढ़ाने से भी खुश हो जाते हैं। अरे आप तो इंसान हैं, हम तो एक दूसरे के लिए दुआएं दे सकते हैं ना, और जब हम दिल से दुआएं देंगे तो हमें तो मिलेंगी ना। जैसे कि वन वाइब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस विल गो टू द यूनिवर्स एंड इट विल कम बैक टू अस। सो डेफिनेटली आवर वन वाइब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस विल गो टू द माई हैप्पी यूनिवर्स एंड डेफिनेटली योर ब्लेसिंग्स विल कम टू अस। थैंक यू वेरी मच। तो चलो फ्रेंड्स, बात कर लेती हूँ ये कार्ड आपके लिए क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। सबसे पहले अपने लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। हम जो कुछ है बेस्ट है। आपको लगता होगा शायद ये सम टाइम ओवर लगता हो, भाई ओवर हमें करना है। थैंक यू की कोई लिमिट नहीं, जितना थैंक यू करेंगे उतने ग्रो होंगे। अगर आप वैसे ही दुनिया में ग्रोथफुल नहीं दिख रहे तो कोई बात नहीं, मेंटल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। मेंटल पीस में ना आप इतने सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे ग्रो करेंगे, समवेयर यू विल हैव अ मेंटल पीस। आपको दुनिया को दिखा के क्या करना है, आपको अपनी मेंटल पीस अपने अंदर रखने हैं। बिकॉज जिंदा इंसान आप है, आपके अंदर ब्लेसिंग्स है, आपके अंदर जो है वो मेंटल पीस होगी, आपके अंदर ही जो है वो ग्रोथ चल रही है। अगर आप सही हैं, आप बिल्कुल स्टेबल हैं, देन वन डे योर रिफ्लेक्शन विल रिफ्लेक्ट इन द यूनिवर्स लाइक सन। तो देखो, एस मीन्स सन, और इस सन को मैंने क्यों लिखा है, समवेयर इट रिफ्लेक्ट सुपर ब्लेसिंग्स, इट रिफ्लेक्ट सन एंड इट रिफ्लेक्ट माई नेम ऑल्सो। सो रिफ्लेक्ट moreover, simply shower super blessings with super conscious spirit. How? With this humbleness. जब हम हम्बल होते हैं, हम दीन होते हैं, हम दीन होते हैं जब दिल से और आत्मा से।
अपने अहंकार को पीछे कर कर, अपने दिमाग को पीछे करके, सिचुएशंस को पीछे करके, एंड स्टिल इन द ट्रूथनेस हम जब भी हम्बलनेस में किसी भी काम को करते हैं, क्योंकि हम्बलनेस, दीनता हमारा एक ऐसा व्यवहार का, एक ऐसा नज़रिया आप कह सकते हैं, एक ऐसा तरीका है दीन होना। बस वो दीनता हमें कहीं पे भी सही समय पे और सही इंसान के आगे, सही सिचुएशन में जब हम इस दीनता को दिखाते हैं, देन दिस हम्बलनेस ब्रिंग अ लॉट्स ऑफ सुपर नेचुरल, सुपर कॉन्शियसली इन द स्पिरिट में वो ब्लेसिंग्स जो है वो दिखती हैं। ये शायद आपको बहुत सुनने वाली बातें लग रही हैं, लेकिन ये जब हम इन पे चलते हैं तो ये हमें नेचुरली फील होती है, नेचुरली ग्रेस मिलती है हर काम में करने की। एंड मोर ओवर, आप आज से हफ्ते, अगर आप इसको आज प्रैक्टिस में ला रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड को आज प्रैक्टिस में ला रहे हैं, तो 1 मंथ के बाद ना समवेयर यू विल फील वेरी मच चेंज इन योर बिहेवियर, इन योर नेचर। थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमारी माइंड्स की कंडीशनिंग्स होने में, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो करने के लिए तो एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे ना। सबसे ज़्यादा मास्टरी तो अपने ऊपर करने की ज़रूरत है। जिसने अपने मन को जीत लिया वो तो सारी दुनिया का राजा है। क्योंकि हम्बलनेस होने के लिए ना मन पे भी कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन में ना अहम भी होता है, अहम, घमंड, क्योंकि जो हमें किसी के आगे झुकने नहीं देता। ये मन ही है जो पाप भी करवा देता है, ये मन ही है जो आपको कहीं पे भी सच्चाई से कोई चीज़ दे देता है। तो चलो ना, मन के ऊपर काम करके माई हैप्पी यूनिवर्स क्रिएट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इसको मैंने यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और एक ये इनोवेटिव से थोड़ा सा ढक गया, यहाँ पे भी है थैंक यू। ठीक है, सिंपली शावर सुपर ब्लेसिंग विद सुपर कॉन्शियस स्पिरिट। मतलब कि फ्रेंड्स, मैंने आपसे बात की थी हमारे माइंड में कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, और एक अगर मैं बात करूँ तो इट कैन बी अ सुपर कॉन्शियस, जो कहीं ना कहीं हमें ले जाता है हमारे स्पिरिट लेवल पे। या फिर मैं इसको एक और बात में कहूँ, जब आपके सातों चक्र में जब आपका सहस्रार चक्र जब बिल्कुल अच्छे से कमल की तरह खिल जाता है, देन यू विल बी अ सुपर कॉन्शियस पर्सन। आप बहुत ज़्यादा चेतन व्यक्ति, अवचेतन नहीं, चेतन व्यक्ति बन जाते हैं। और आपके अंदर एक चेतना, इस तरह की चेतना, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस, आपके स्पिरिट, आपकी सुपर कॉन्शियस स्पिरिट, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। एंड यू हैव अ कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट, एंड यू हैव अ कैपेबिलिटी टू फेस एनी काइंड ऑफ चैलेंज, एंड यू विल बी अ वेरी स्टेबल पर्सन। यस यू कैन, एंड जस्ट ट्राई इट। तो देखो, एच मीन्स ऑनेस्टली, मैंने कहा था मैं ऑनेस्टली से आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। हम्बलनेस, हम जब भी ईमानदार होते हैं, ईमानदार आप हो सकते हैं अपने काम के प्रति, ईमानदार आप हो सकते हैं अपने रिश्तों के प्रति, ईमानदार हो सकते हैं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति, ईमानदार आप हो सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन उस ईमानदारी में अगर आप कॉन्टिन्यूटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ जब हम उसमें ईमानदार होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी वफादारी ही दिखाता है। सो दिस एच स्टैंड मीन्स वफादारी और आपकी ईमानदारी। देन फ्रेंड्स, यू अल्टीमेट, ये एक अल्टीमेट, एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमारी हर ब्लेसिंग को हमारी लाइफ में कंजर्व करके रखता है। हम कहते हैं ना, हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। वैसे ही हम्बलनेस, जब हम अहंकार नहीं करते किसी चीज़ के आने का, किसी चीज़ के जाने का भी आपको वो नहीं होता, लेकिन आना, जब हमें कुछ मिल जाता है ना, तो कहीं ना कहीं मोस्टली ये इंसानियत है, हम इंसान हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग जो हम गलतियां करते हैं और गलतियों से हम सीखते भी हैं, गलतियां हमारे लिए ब्लेसिंग भी बनते हैं। लेकिन कहीं कुछ भी मिलने पर हमें जो है वो अपने आप को जो है वो गिरा नहीं देना, अपने आप को डगमगाने नहीं देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट वे है अपनी ब्लेसिंग्स को संभालने का, दीनता। ठीक है, अगली बात, एम, मिराकुलस। मिराकुलस मीन्स व्हेन वी जस्ट ग्रो विद ग्रैटिट्यूड। आप थैंक यू करते जाते हो और दीन होते जाते हैं, आप थैंक यू करते हो और दीन होते जाते हैं। थैंक यू एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको कुछ बहुत कैरियर में, बहुत मेहनत के बाद जो आपको कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है, तो आप कहेंगे थैंक यू गॉड, आपने मुझे दे दिया। हर दिन आप थैंक यू करते हैं और थैंक यू को आप बोझ नहीं ले रहे, लेकिन दिल से आप कह रहे हैं सचमुच यार, पहले ये चीज़ नहीं थी लेकिन अब ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। यस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू सुपर नेचुरल पावर, आप जो भी हैं, जो भी मेरे साथ हैं, थैंक यू। सचमुच ही मुझे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ ही मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है आपकी ग्रेस से, आपकी कृपा से। मेरे अंदर तो इतनी क्वालिटी नहीं थी, लेकिन सचमुच ही मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं बिकॉज ऑफ ग्रेस, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ ट्रुथनेस, जो कि इस दुनिया में सच्चाई है और सच है, सच जीतता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द बी,
इट्स अ ब्रिलियंट वे। कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा, बढ़िया और ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीन्स कहीं ना कहीं अगर मैं चीज़ कहूँ तो इट्स सम वेरी यूनिक वे जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं लाइफ के हर एस्पेक्ट पे। एग्जाम्पल, आप हम बहुत से दान पुण्य वाले लोगों को देखते हैं। अगर कोई बहुत नाम पहचान वाला पर्सन जो वो दान पुण्य करता है उसका नाम बहुत हाईलाइट किया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोगों के नाम मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो कि जो इतना दान करते हैं जो कभी अपना नाम नहीं बताते, देन वो इतने बड़े पायदान पे पहुंचकर भी बहुत हम्बल होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में बहुत से लोगों ने बहुत सा हार्डवर्क किया होता है और बहुत सा स्ट्रगल देखा होता है। और स्ट्रगल ना, जब आप ज़िंदगी में किसी तकलीफ से निकले होते हैं, जब हम अपनी लाइफ से किसी दुख से निकल कर किसी चीज़ को अचीव करते हैं, तो पता है कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल जो है ना, वो संघर्ष हमें हम्बल बनाता है, वो संघर्ष हमें दीन बनाता है, क्योंकि हमें उस दुख तकलीफ की वैल्यू उस समय में पता होती है। और स्ट्रगल करने वाला इंसान हमेशा ही दिल से हम्बल होता है। जिसको कोई चीज़ आसानी से मिलती है वो हमेशा उस चीज़ की वैल्यू नहीं पा पाता। ये मेरा समझना है, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो, लेकिन मोस्टली बहुत से आप लोगों को अपने नोटिस में आप कर सकते हैं, जो व्यक्ति ने, जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लाइफ में देखो, वही किसी को गाइड कर सकता है, वही किसी को पाथवे दिखा सकता है, और वही इंसान जो है वो हम्बलनेस में आगे बढ़ सकता है और उसे इंसान को वैल्यू पता होती है हर चीज़ की, पर्सन की, और हर चीज़ की अहमियत भी। इट्स वेरी कन्फर्म्ड। नेक्स्ट इज द एल, लव वाइब्स ऑफ पीस। और कहीं ना कहीं ये जो हम्बलनेस होती है प्रेम से भरी होती है। अब हम जब हम्बलनेस से किसी से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रेम में होते हैं, हम पीसफुल है, हमारा माइंड पीस में है, तो हम ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को पीस की वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, विच इज़ फुल ऑफ लव। ठीक है। एंड ई, अवे फ्रॉम ईगो, या फिर आप कह सकते हैं ईगो लिविंग, ईगो लिविंग अवे। लिखना था मैंने अवे, यहाँ पे वे लिख दिया। कहीं ना कहीं ये जो है ना हमारे अहंकार को नष्ट करने का, पूरी तरह से अहंकार को खत्म करने का तरीका है। अगर अहंकार को खत्म करना, जस्ट कीप हम्बलनेस। बट फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक बात कही थी यहाँ पे इस रोस्टर के अकॉर्डिंग, आखिर हमें हम्बलनेस के लोगों के आगे शो नहीं करनी चाहिए। हम्बलनेस शो करने के लिए सबसे पहले तो हमें व्यक्ति की, इंसान की सही और सच्ची परख होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सच्चे इंसान को जानते होंगे तो उसके आगे नेचुरली हम दीन हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जब हम स्पिरिट लेवल पे होते हैं, मतलब कि आत्मिकता में होते हैं, चेतना में होते हैं, सुपर कॉन्शियस लेवल पे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें नेचुरली ही हर इंसान की परख आ ही जाती है। चाहे वट एवर कुछ भी हो, आपको हर इंसान का सच उसकी आंखों में, उसके बिहेवियर में दिख जाता है। यू हैव वन काइंड ऑफ इंट्यूजन पावर इन यू दैट रिफ्लेक्ट द रियल ट्रूथनेस ऑफ एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन, एवरी पर्सन, एंड बहुत सी आने वाली चीज़ों की इंट्यूजन्स भी जो है वो आपको हो जाती है। बट एनी वे, जस्ट ग्रेटिफाइड एंड बी हम्बल फॉर द थिंग्स यू आर हैविंग, एंड बी हम्बल फॉर योर हेटर्स ऑल्सो, क्योंकि कहीं ना कहीं वही तो आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप ग्रो कर सकते हैं। सो बी ब्लेस्ड एंड मोर ओवर। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको एक बात लिखी थी, ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी। फ्रेंड्स, अगर आप कोई काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं और आपको फील होता है कि मैं ही ईमानदारी से कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो अगर कोई बेईमानी से काम नहीं करेगा तो आपकी ईमानदारी कैसे दिखेगी? तो कहीं ना कहीं अच्छाई बुराई हमारे साथ चलती है। बुराई होगी तो अच्छाई की परख दिखेगी, अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छा ही अच्छा होता रहेगा। एग्जाम्पल, आप है, हम है, जो हमारी कमियां हो सकता है वो आपकी खूबियाँ। हम इंसान सेम लेवल पे होकर भी एक दूसरे से कितने डिफरेंट है, हमारा रोटेशन प्लान कितना डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट होते हुए भी हम सब क्या है, हम सबको सेम मिला है, सब कुछ इक्वालिटी में क्रिएटर ने दिया। इट्स वेरी प्रूव्ड। सो फ्रेंड्स, be humble, be thankful, never proud for anything in your life, because nothing is permanent till this time when you're not following humbleness in your life. So God give us a grace to be humble in all aspects of the life. चाहे हमारी लाइफ में कुछ भी हमें मिला है वो सचमुच हमें एक सुपर नेचुरल पावर के थ्रू मिला है। वो पावर को हमने कभी देखा तो नहीं, बट हाँ, हम एक दूसरे में उसे महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे के थ्रू इज्जत कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस पावर के बनाए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत खुश रहे, आपने इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और हैप्पी यूनिवर्स को अपनी दुआ में ऐसे ही याद रखिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अपनी फर्स्ट वीडियो के स्पेशल कमेंट्स के ऊपर वीडियोस बनाने वाली हूं, और 1K होने के बाद आपके लिए सेलिब्रेशन भी किया जाएगा। एंड मोर ओवर,
आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड स्पिरिट। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, ताकि हम सब आपको अपनी दुआओं में और आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और हम मिलकर बनाए एक खुश ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में बहुत सी सुख शांति समृद्धि हो, और हम सब बड़े खुश रहें और एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बने। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू मोर 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 विद माई हैप्पी यूनिवर्स शालिनी वन। सो बाय बाय, टेक केयर।